chief guest and our guest of honor, both of them are here. Delhi Fair. We always begin the program with the traditional lamp lighting ceremony, a very important part of our Indian tradition. दीपक प्रतीक है रोशनी का, आस्था का, सफलता का, तरक्की का. May this light up our path and augur well for our program. I request Shri Dilip Vaid, Vice Chairman EPCH, to present bouquet to Shri Suresh Kumar Khanna ji, Minister of Finance and Parliamentary Affairs, Government of Uttar Pradesh. Shri Deepak Gupta, Vice President of IIGF Delhi Fair. Thank you, and now I request Shri Rajkumar Malhotra ji, Chairman EPCH, to deliver the welcome address. Shrimati Darshana V. Sardos, Honorable Union Minister of State for Textile and Railways, Shri Suresh Khanna, Minister of Finance and Parliamentary Affairs, Government of UP, Shrimati Shubhra, Trade Advisor and Development Commissioner, Handicraft and Handloom, Shri Dilip Vaid, and Shri Neeraj Khanna, Vice Chairman EPCH, Mr. Avdesh Agarwal, President IIGF Delhi Fair Spring 2023 Reception Committee, Shri Rakesh Kumar, Director General EPCH, exhibitors, exporters, buyers, buying representatives, friends from press and media, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to welcome you all at the inauguration 55th edition of IIGF Delhi Fair, one of the largest and most prestigious trade fairs in the country. This event is a testament to spirit and creativity of the member exporters who have been showcasing their exotic craftsmanship and unique products to the world around for the last 3 decades. I am especially honored to welcome Shrimati Darshana V. Sardos, Honorable Union Minister of State for Textile and Railways, who have always supported us in all our endeavors. Guidance and encouragement have been instrumental in the growth and development of handicraft. We look forward to hearing your valuable insight on the future of handicraft industry and how we can work together to further strengthen and promote this sector. I am honored to welcome Shri Suresh Khanna, Honorable Minister of Finance and Parliamentary Affairs, Government of UP, who is visiting this fair first time. During the 8th tenure as the Finance Minister, Suresh Kumar Khanna has been implementing several initiatives aimed to promoting economic growth and development in Uttar Pradesh. I would like to welcome Shrimati Shubhra,
trade advisor and development minister of handicraft and handloom, for being with us today at inauguration ceremony. I would like to express our sincere gratitude to Ministry of Textile and the Office of Development Commission Handicraft for their unwavering support, which has been a driving force behind our efforts to promote the show called the Handicraft India to the world. We are confident that with the continued patronage, EPCF will continue to play a pivotal role in promoting the Indian handicraft and contributing toward the social economic development of artisans and craftsmen of our country. EPCF has been regularly making efforts to promote crafts of different regions of the country by providing marketing platform to micro and small entrepreneurs, artisans, craft persons to showcase their product. This show will also is a thematic display of crafts of India, including Maharashtra, Tamil Nadu, Northeast state, and rest of the country, and would provide an opportunity to the participants to showcase their craft to the buying community. In the next 5 days, the fair venue will become knowledge sharing platform wherein seminar, discussion on various topics like cyber security, packaging solutions, panel discussion, sustainability, and free trade agreement introduction by new wood specific banking solutions, and also insurance and many more will be organized. I would like to welcome all our exhibitors, artisans, buyers and visitors for their continued support and wish everyone a productive and fruitful business during the 55th edition of ISGS Delhi Fair 2023. Now, I will special मैं सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, मैं क्योंकि एक नई योजना जो प्रधानमंत्री जी ने अभी पीछे कुछ दिन पहले अनाउंस कर दी है, प्रधानमंत्री विकास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, जिसके अंदर कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ही मैडम शुभ्रा जी ने जो चेयर करा था, जिसमें मोदी जी ने वर्चुअली लोगों से कुछ गाइडेंस दी थी हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए, हैंडलूम के लिए, जहां आर्टिजन्स हैं उनके लिए योजना इतनी अच्छी है। मैं समझता हूं आत्मनिर्भर के लिए हर व्यक्ति के लिए काम लाने की योजना, उसके लिए सरकार का, और मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। थोड़ा और ओपन कर लो और फुल This is the fair directory of the 55th IHGF Delhi Fair Spring 2023. And now we'll have the ribbon cutting ceremony. Can we have the... बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती दर्शना जावेद जी जारदोश जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। कुमार खन्ना जी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, टू काइंडली एड्रेस द गैदरिंग। आज के इस फेयर में अभी आपके सामने एक पुस्तक का विमोचन हुआ
और इस फेयर का विधिवत उद्घाटन भी हुआ। हमारे चीफ गेस्ट सम्माननीय राज्य मंत्री टेक्सटाइल भारत सरकार, मंच पर विराजमान हमारे सभी एक्सपोर्टर्स, पदाधिकारीगण तथा यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित एग्जिबिटर्स एंड बायर्स, मेरे सामने उपस्थित सभी महानुभाव पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगभग 3200 से अधिक एग्जिबिटर्स यहाँ पर अपने अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर पधारे हैं, हम उन सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यद्यपि वेन्यू उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या भी इसमें ज़्यादा है, लेकिन आप सहमत होंगे कि हिंदुस्तान के डिफरेंट सिटीज से उनके अपने क्षेत्र में जो भी इस प्रकार का उत्पादन होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर हो या फिर हैंडीक्राफ्ट के आधार के ऊपर हो, मैं समझता हूँ कि ये डिस्प्ले का सबसे अच्छा स्थान है, सबसे अच्छा वेन्यू है। लोगों को अपना हुनर दर्शाने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना भी चाहिए जहाँ पर उसकी कदर हो सके, और मैं समझता हूँ कि बायर्स के लिए भी ये अत्यंत सुविधाजनक है कि उनको एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स जो उनकी खरीदने की इच्छा भी रहती है उनको मिल सके। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो हमारी योगी सरकार की बहुत सफल योजना है कि हर जिले की कोई न कोई विशेषता है, हर जिले में कोई न कोई ऐसा उत्पादन होता है जो न केवल उस जिले में, न केवल प्रदेश में, बल्कि देश और दुनिया में जिसकी सराहना होती है और जिसको लोग पसंद करते हैं, उसको परचेज भी करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए भी, और उसको चाहे एग्जिबिट करना। उत्तर प्रदेश ने अपना एक्सपोर्ट डबल किया। पहले लगभग 88,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ था, पीछे हम उसको 1,56,000 करोड़ पर पहुंच गए। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करें। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी $1 ट्रिलियन अचीव करने का एक लक्ष्य रखा है और उसी दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार के बजट में भी और उत्तर प्रदेश के सरकार के बजट में भी इन सब चीज़ों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का संकल्प भी लिया है और उसके लिए बजट के प्रोविजन भी किया। आज जो भी हमारे सामने स्किल्ड लोग हैं, खास तौर से किसी न किसी क्षेत्र में उनका एक्सपर्टीज है, वो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि के माध्यम से बेहतर प्रोडक्ट तैयार करते हैं और जिसको पूरी दुनिया के लोग न केवल पसंद करते हैं बल्कि उसके परचेजर भी हैं। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। आज चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे तमिलनाडु हो और चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, निश्चित रूप से हर क्षेत्र का यहाँ पर जो विशेष उनका प्रोडक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा
एक स्थान पर। और मैं समझता हूँ कि जितने भी स्टॉल्स मैंने देखे सब एक से एक ज़्यादा बढ़िया, कौन किससे ज़्यादा अच्छा है ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है ऐसे मौके पर। मुझे बहुत खुशी है कि हम फिर से जो हमारा लक्ष्य है, हम $1 ट्रिलियन का एक यूपी का और $5 ट्रिलियन केंद्र का, उसको अचीव करने की दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट भी लगातार बढ़ रहा है और आज देश और दुनिया में भारतीय प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके लिए हम अपने एक्सपोर्टर्स को, अपने प्रमोटर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को और ख़ास तौर से उन कारीगरों को, उन डिज़ाइनर्स को कि जिन्होंने इनके विशेष प्रयास से ये योजना सफलता की ओर लगातार अग्रसर हो रही है। हम आयोजकों को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज इस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया और ये एग्जीबिशन साल में 2 बार लगती है और आज ये अपने आप में एक बहुत अच्छा स्थान है उन लोगों को प्रमोट करने के लिए जिन्होंने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अपने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले किया। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देने के साथ ही अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से आज के इस मौके पर स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो हम यहाँ सभी कर सकते हैं। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सिंग डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। और अब मैं निवेदन करती हूँ हमारी मुख्य अतिथि जी से, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री वस्त्र एवं रेल मंत्रालय, कि वे हम सभी को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। IAGF की ओर से आज जो एक क्राफ्ट रिलेटेड चीज़ का एग्जीबिशन की उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश जी, जिनके पास फाइनेंस भी है और काफ़ी अनुभव भी है, और योगी जी की सरकार में सबसे अच्छा काम जहाँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हुआ है उसी जगह पे ये फेयर का आयोजन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में ये एग्जीबिशन में सब लोग जो यहाँ पे आए हैं, मैं सभी को धन्यवाद भी देती हूँ। आज ऐसे समय में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, खास करके राकेश जी, राजकुमार जी, जो सभी मंचस्थ महानुभाव हैं, उनको मैं आगे भी मिल चुकी थी। पिछले साल जब ये एग्जीबिशन में आई थी तब देश कोविड से उभर रहा था और जितनी एक्सपेक्टेशन थी इतने एग्जिबिटर्स आए नहीं थे, बायर्स नहीं आए थे। तो किस तरह से ऑनलाइन उनको फील कराया जाए या उनको जोड़ा जाए, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई। लेकिन जिस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप लोगों ने देखा कि कोविड की वैक्सीनेशन के बाद में बैक टू नॉर्मल लाइफ और इकोनॉमी में उभरते हुए व्यापार को कैसे बढ़ावा, ग्लोबली टच मिले, इसके लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट हम लोगों ने किए हैं। और ऐसा समय है जो हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं और 100 साल बाद वाला भारत कैसा होगा, इसकी नींव अभी रखी जा रही है। तो इसी समय में ऐसे फेयर हम लोगों को एक नई ऊंचाई के ऊपर लेके जाएंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों द्वारा सभी जनता को भी धन्यवाद दूंगी कि ऐसे समय में सबके साथ सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ में, इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़े कि कैसे भारत को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक नई ऊंचाई के ऊपर हम लेके जाए। और तभी जब G20 समिट के आयोजन के हम होस्ट हैं और पूरी दुनिया की नज़र जब हमारे ऊपर है और जहां प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है वसुधैव कुटुंबकम, वन नेशन वन फ्यूचर, और हम लोग को एक साथ लेके आगे चलना है एक परिवार की तरह। तो उसी समय में जब भी कोई लोग आएंगे तो सबसे ज़्यादा चीज़ का लेन देन होगा या गिफ्ट के तौर पे या तो पसंद करने की चीज़ के ऊपर, तो ये हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की चीज़ होगी। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि टेक्सटाइल के बाद में एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा लोग टेक्सटाइल के साथ जुड़े हैं और इसमें सबसे ज़्यादा महिला जुड़ी है। जो
हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की एक्टिविटीज़ घर पे बैठ के भी शुरू कर रही है। बहुत सारी महिला यहाँ पे जो है जिन्होंने अपने हुनर से बहुत अच्छा अचीव किया है और धीरे धीरे ये जो ग्लोबल मार्केट में भी अपना स्थान कैच कर रही है। लीडरशिप में महिलाओं को आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न बहुत अच्छे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए जितने भी प्रोग्राम हुए तो इसमें सबसे ज़्यादा जब महिला जो राष्ट्र की सशक्त होगी तो वो पूरे परिवार के साथ में उनको आगे लेके जाएगी। खास करके ये अमृत काल के बजट में एक शब्द यूज़ किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो आप लोगों ने भी सुना होगा, जो हैंडीक्राफ्ट के लिए विश्वकर्मा भगवान जिसके हाथों में हुनर है, जो सभी हाथों में अपने औजार लेके विश्वकर्मा भगवान जो खड़े होते हैं, जो इनको कुछ विशेष कुछ आता है, जो हुनर से अपनी कला को जीवंत रखते हैं, तो इसके लिए भी एक योजना बनाई जा रही है। आने वाले समय में इसी के बारे में आपको डिटेल जानकारी भी मिल जाएगी। लेकिन मैं यूपी सरकार के सीनियर मंत्री को एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरह से सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से हम लोगों ने एफर्ट किए हैं, शुभ्रा जी भी यहाँ बैठी है, हमारी ट्रेड एडवाइज़र, हम लोग साथ में ही आए कि हम लोगों ने जितने आर्टिजन कार्ड बनाए हैं, पहचान पत्र जो हैंडलूम के हो या हैंडीक्राफ्ट के, तो उसमें अभी बहुत ही इजाफा करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोगों तक हम पहुंच नहीं पाए, जिसमें हमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए। अगर एक पहचान पत्र होगा, वो आधार कार्ड से लिंक होगा, तो उनको भविष्य में जैसे हम लोगों को कोई मार्केट से लिंक करना होगा, मार्केटिंग के लिए जुड़ना होगा, या तो कोई ट्रेनिंग देनी होगी, या तो इक्विपमेंट देने होंगे, उनको कोई टूल किट चाहिए, तो इसके लिए पूरी क्लस्टर के साथ में डेवलप करने के लिए हम लोगों को ये पहचान पत्र बहुत ज़रूरी चाहिए। मैं ये आपने जो भी यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग राकेश जी आपके द्वारा हुई है, उस स्टॉल पे आप मुझे लेके गए, तो वहाँ पे भी मैंने यही प्रश्न पूछा कि सबके पास आर्टिजन कार्ड है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं होती, वहाँ ये काम बहुत धीमी गति से चलता है। और ऐसा भी होता है कि राज्य सरकार की कोई योजना हो, ट्रेनिंग की हो, जैसे हमारी समर ट्रेनिंग, जिसमें एक साथ में लोग क्लस्टर पे बैठ जाएं, तो सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों को पैसे मिलते हैं। तो दोनों प्रकार की अलग अलग स्कीम होती है। टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा सेक्टर जो ऐसा है कि अभी प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ में जो 3 चीज़ों के लिए फोकस किया गया, जिसमें मैनमेड फाइबर आता है कि जो पूरी दुनिया यूज़ करती है 75%, और हमारा स्टैक है सिर्फ 25%। दूसरा है रेडीमेड गारमेंट, और तीसरा है टेक्निकल टेक्सटाइल। जो भी टेक्निकल टेक्सटाइल के कंपोनेंट है, इसमें भी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट वाले लोग जुड़ सकते हैं। तो जैसे ये कारपेट बनी है, कर्टन्स है, बहुत सारी सस्टेनेबल रिसाइकलिंग चीज़ है, जिसका यूज़ करके हम नए प्रोडक्ट के साथ में, नए मटेरियल के साथ में, इनोवेटिव आइडिया के साथ में हम आगे जा सकते हैं। ज़्यादातर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की चीज़ में जो चीज़ आती है कि कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री थी हम लोगों की, बाद में नए मटेरियल इंट्रोड्यूस होते गए और बहुत सारे इनोवेशन भी होता गया, रिसर्च भी होता गया। ये साल में रिसर्च के लिए, ट्रेनिंग के लिए नए आइडियाज़, ग्लोबल मार्केट कैसा है, इसकी डिमांड कैसी है, कलर क्या चलेगा, स्कीम कैसी चलेगी, और बायर्स को क्या चाहिए, हम जो बनाते हैं उसे ही नहीं बेचना है, जो मार्केट को चाहिए वो चीज़ बना के हमें सप्लाई करनी है। तो इसके लिए बहुत सारे आइडिया सरकार ने लगाए हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। और इसके लिए पीएम मित्र पार्क, जो सबसे बड़ी योजना, 1000 एकड़ में एक साथ में काम करने वाले लोग आएंगे। इसके साथ में PLI स्कीम आई। PLI स्कीम के अंदर भी हम चाहते थे कि फॉरेन इन्वेस्टर आए और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनाने लगे। PLI 2 भी हमारा रेडी हो चुका है। मुझे आनंद है कि उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, जो 12 स्टेट है जिसकी ऑब्जर्वेशन चल रही है अभी, और 12 में से 7 स्टेट जहाँ अच्छी एक्टिविटीज़ होती है टेक्सटाइल रिलेटेड, और जिसमें 51% सेल्फ स्टेट का है और बाकी सेंट्रल का है। तो इसके भी पैरामीटर के हिसाब से गतिशक्ति मॉडल के आधार पर हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई एक मंत्रालय कुछ तय कर लेता है तो उसके साथ में फिर बाकी जुड़ते नहीं है। प्रधानमंत्री जी की सबसे अच्छी सोच यही है
कि एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय की समन्वय से साथ आगे बढ़े। मैं अभी सुरेश जी को यही बता रही थी कि हर एक स्टेशन के ऊपर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के स्टोर लगाए गए हैं और वो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो बेस लिया गया वो यूपी की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो एक मॉडल था उसी को एक्सटेंड करके रेलवे मंत्रालय ने एक्सेप्ट किया है। और वहाँ पे भी ऐसा है कि 15 दिन के लिए कोई एक आर्टिजन को स्टॉल मिलेगा, 15 दिन के बाद में दूसरे आर्टिजन को ये स्टॉल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को इसमें मौका मिलेगा। जहाँ टूरिस्ट प्लेसेस है, जहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, जैसे आगरा, जोधपुर, जैसे साउथ में साड़ी जो होती है तो वहाँ पे चेन्नई स्टेशन के ऊपर हाईएस्ट उनका सेलिंग हुआ। तो जहाँ जहाँ ऐसे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेशन हैं, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस प्रधानमंत्री जी का है। तो इसी के कारण जब पहली बार हम लोगों ने गुवाहाटी स्टेशन के ऊपर जब स्टॉल रखा तब ये सोचा गया कि सरकार का समन्वय हो जाएगा तो सरकार बहुत सारे अपने नाम से जो एक हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें चलाती है तो बहुत सारी चीज़ वहाँ मिल सकती है। बाद में अरुणाचल, मेघालय, वहाँ की प्रोडक्ट को कैसे स्ट्रीमलाइन में लाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने लिए ही बनाया और अपने लिए ही यूज़ किया। तो उनकी चीज़ों में कला बहुत है। इसकी वहाँ के लोगों को, आर्टिजन को ब्रांड एम्बेसडर बनाना, जैसे मीराबाई चानू को जो ओलंपिक प्लेयर्स थी उसको इसमें जोड़ा गया कि ब्रांड एम्बेसडर के नाते। तो ऐसे कई सेलिब्रिटी को जोड़कर हम लोग आगे जाने के लिए सोच रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उनको कैसे मार्केट मिले, डोमेस्टिक मार्केट के साथ में। आज मैं धन्यवाद दूंगी आपको कि यहाँ पे आपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी लोगों को इनवाइट किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें जो उत्पन्न होती है हमारे डोमेस्टिक जो प्लेयर्स, जो बनाने वाले आर्टिजन है, वो इंटरनेशनल डिमांड के हिसाब से कुछ चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें वाली चीज़ देखेंगे तो अपने आप इनोवेटिव आइडिया लेके उसमें भी आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं ये आपका 55 ये साल है जहाँ पे आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और आज़ादी का 75 साल और 25 साल में हमें इतना प्लान करना है। सबसे ज़्यादा जो मार्केट लिंकेज की बात आती है कि कैसे ट्रांसपेरेंसी से उसको जोड़ा जाए, तो इसमें भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से एक कॉमन पोर्टल जो आर्टिजन को जुड़ने वाला है उसके बारे में भी हमारे यहाँ काम चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंटों ने भी अपने अपने हिसाब से किसी प्राइवेट कंपनियों के साथ में, क्योंकि टैक्स का इश्यू आता है जब कोई सेलिंग होती है तो उनको कैसे जीएसटी के साथ जोड़कर उसमें जोड़ा जाए, तो इसके लिए मार्केटिंग के लिए भी हर एक स्टेट ने अपने हिसाब से सोचा है। तो इसमें भी कोई कॉमन पोर्टल आ जाए, जिसमें सबसे बड़ी पहल तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जेम पोर्टल के माध्यम से किया है। तो ये तो पहल है ही, लेकिन सिर्फ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन के लिए भी अगर ऐसा कुछ पोर्टल हो जाए जहां वो अपनी डिज़ाइन, अपनी चीज़ें को बेच सके। मैं एक बार जब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो बता दूं कि प्रधानमंत्री जी अपने कार्यालय के लिए भी कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो वो जेम पोर्टल से खरीदते हैं। सभी मंत्रालयों की आदत यही है। तो छोटे से छोटे आर्टिजन को भी जेम पोर्टल पे ऊपर आज तक हम लोगों ने 3 लाख आर्टिजन को इसके साथ जोड़ दिया है कि जैसे वो जेम पोर्टल पर अपनी चीज़ें बिके। मैं जब बोडोलैंड गई थी, आसाम के जो छोटे से गांव में, वहाँ महिलाओं ने बहुत अच्छा सा गमछा बनाया था तिरंगा वाला, सिर्फ 180 रुपये के गमछे में, और पूरे गांव में जितनी भी महिला थी 150 का ऑर्डर मिला था, खुश थी, क्योंकि खेत में काम करने के बाद में वो इसमें काम में हैंडलूम में जुट जाती थी। तो उसको कैसे ऑर्डर मिले, कैसे, तो वो गमछा जब खरीद कर हमने अमृतकाल में 15 अगस्त को जब भी सभी मंत्रियों को भेजा तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो हम भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ कर सकते हैं। हमने सभी मंत्रालय, सभी मंत्रियों को भी एक रिक्वेस्ट करी है कि आपकी ऑफिस के अंदर आपके लोकल आर्टिजन की चीज़ें जरूर होनी चाहिए, जिसके साथ में आपका जो एक नेचर होता है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का वो रिफ्लेक्ट हो, उसमें बताने की ज़रूरत न पड़े। तो ज़्यादातर ये चीज़ें आपकी गिफ्ट लेने के लिए बुके अच्छी चीज़ है,
लेकिन इसके बदले में हम हमारे छोटे आर्टिजन से कुछ लेकर उसमें गिफ्ट के तौर पे शामिल कर दे तो हम अपने घर पे भी ले जा सकते हैं। ज़्यादातर तो प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो खादी के रुमाल या पुस्तक से स्वागत स्वीकार करते थे, लेकिन जब उनके मन में है ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन, हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है, जिसके दिन पूरे दिन उसी समय भी हम सभी मंत्रालय को लिखते हैं कि हैंडलूम की चीज़ें जरूर खरीदें। और अभी वीमेन डे के ऊपर आज बहुत अच्छे से मुझे याद है कि बहुत सारी संस्थाओं ने ऐसे कार्यक्रम किए कि ज़्यादातर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन और उसके अवार्ड वाले जो अवार्ड विनिंग लोग हैं, जो कई सालों से अपनी कला का हुनर को आगे लेके जा रहे हैं, उसके लिए भी योजना बनी है। बस ऐसे कला गुरु अगर किसी और लोगों को, शिष्य को ये कला सिखा दे तो वो नए जनरेशन को क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी बहुत दुख होता है कि कई कला नष्ट होते जा रही है। मैं अभी जब उड़ीसा गई थी, बॉम्किन साड़ी एक ही परिवार बचा है वो बनाने वाला, प्रधानमंत्री जी ने, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। तो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के लिए भी है। और मुझे तो बहुत गर्व है जो विश्वकर्मा जयंती होती है 17 सितंबर, उसी दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आज़ादी का अमृत काल में 75 लोगों को, जो आर्टिजन है, मैं तो कला गुरु को भी बोलती हूँ कि आप अवॉर्डी है तो आप 75 लोगों को ऐसे तैयार कर लीजिए कि जिसमें ये 75 साल का सेलिब्रेशन भी दिखे और इसके साथ में आप राष्ट्र को भी कुछ समर्पित करें कि आने वाले 100 साल के बाद वाला भारत कैसा होगा। हमें से तो कई लोग 100 साल का सेलिब्रेशन नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो नई जनरेशन जो इसमें आना नहीं चाहती, इसके लिए एक सर्टिफाइड कोर्स हो जाए, मिनी कोर्सेज हो जाए, उसके साथ कैसे जोड़ा जाए, तो ये सब सरकार लिंक करने का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लिंक करने के बारे में सोच रही है। और सिर्फ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट नहीं, मैनमेड फाइबर नहीं, रेडीमेड गारमेंट्स नहीं, सिल्क, जूट, इसको भी इतना बढ़ावा होना चाहिए। सिल्क सबसे पहले जहाँ आया था, इसके बाद में हम जापान के बाद में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन सकते हैं। सिल्क में भी इतना हम लोगों ने MOU साइन किया है गवर्नमेंट के साथ में, जो अपनी बंजर जगह पर कोकून का उत्पादन करके सिल्क का प्रोडक्शन करेंगे तो सरकार उसको सपोर्ट करेगी। जूट में भी है कि बैग्स के साथ साथ में, क्योंकि ये सस्टेनेबल भी है, रिसाइकलिंग वाली चीज़ भी है, टेक्निकल टेक्सटाइल में भी ये जूट का यूज़ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें हैं। टेक्सटाइल का विषय बहुत बड़ा हो गया। टेक्सटाइल के साथ में जब कॉमर्स को जोड़ा गया तो वह हमारी बिजनेस इंजरी को पता चलने लगा कि भाई कहाँ हमारे गैप्स है, कैसे है, डिपेंड होना पड़ता है हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर। और तीसरा चौथा सेक्टर वो आ जाता है जब कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री आती है तो कॉटन के ऊपर तो एग्रीकल्चर आ जाता है, तो अच्छी कॉटन कैसे उसकी उत्पादन, तो पूरी वैल्यू चेन के साथ में हम लोग फार्म टू फाइबर टू फैशन टू फॉरेन तक जाते हैं। तो इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, खास करके ग्लोबल में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपनी इमेज बनाई है, ऐसी इमेज में आप लोगों के सहयोग के बिना हमारे आर्टिजन विदेश में अपनी चीज़ें नहीं बेच पाएंगे। तो जरूर आपका ट्रेनिंग, आपका प्रोग्राम, आपका ये सेंटर नोएडा का बहुत अच्छा है। यूपी सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपके आर्टिजन कार्ड के साथ में आपने बहुत सारी चीज़ें करी है, लेकिन जितना बाकी है वो हम सब मिलकर आगे वाले साल में करेंगे। धन्यवाद। के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है वे बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं अपने गणमान्य अतिथियों को। मैं निवेदन करती हूँ श्री नीरज खन्ना जी से, वाइस चेयरमैन EPCH, टू प्रेजेंट मोमेंटो टू ऑनरेबल चीफ गेस्ट यूनियन मिनिस्टर स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड रेलवेज श्रीमती दर्शना V. जादोश जी। I request Shri Parvinder Singh, Vice President IHGF Delhi Fair Reception Committee, to present a memento to Shri Suresh Khanna ji, Minister of Finance and Parliamentary Affairs, Government of Uttar Pradesh, our guest of honor. माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के लिए स्मृति चिन्ह। अरे बैठ जाओ भैया बीच में श्री से। रविंद्रनाथ, वाइस प्रेसिडेंट IHGF दिल्ली फेयर से निवेदन करते हैं
कि वे मोमेंटो प्रदान करें श्रीमती शुभ्रा को। शी इज़ द ट्रेड एडवाइजर एंड डेवलपमेंट कमिश्नर, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स। एसी डायरेक्टर जिसमें तो मैंने अलायंस नहीं लगाया सर। May I now request Shri Avnish Agrawal ji, President IHGF Delhi Fair, Spring 2023, to deliver vote of thanks. आदेश कुमार अवधेश वो देखने को लगता श्रीमती दर्शना जयदेश जी, अरे आगे जाके केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री, श्री सुरेश खन्ना जी, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, श्रीमती शुभ्रा जी, सलाहकार और व्यापार आयुक्त, श्री राजकुमार मल्होत्रा जी, चेयरमैन EPCH, श्री दिलीप वैद जी, वाइस चेयरमैन EPCH, श्री नीरज खन्ना जी, वाइस चेयरमैन EPCH, श्री राकेश कुमार जी, DG EPCH, श्री RK वर्मा जी, एडिशनल डायरेक्टर EPCH व सभी सम्मानित उपस्थित मंच पर आसीन गणमान्य व्यक्तिगण, समस्त CEO मेंबर्स, श्री नजमुल इस्लाम साहब, सभी आर्टिजन्स, प्रेस, मीडिया, हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपना कीमती समय निकालकर इस उद्घाटन को भव्य बनाया। माननीय श्रीमती दर्शना जी के नाम में ही ज्ञान छुपा हुआ है। दर्शना जी का मतलब ही ज्ञान है और आज उन्होंने उस ज्ञान से हम सभी को भारत सरकार क्या चाहती है इसके विषय में पूर्ण ज्ञान दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। श्री सुरेश खन्ना जी हमारे उत्तर प्रदेश के, जैसे कि उनके नाम में भगवान इंद्र छुपे हुए हैं, वो हमारे इंद्र हैं, वित्त मंत्री हैं, जो समय समय पर हमें नीति निर्धारण का आभास कराते हैं कि किस प्रकार हमें भारत को मजबूत बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने ODOP के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को साकार करने में समय समय पर दिशा निर्देश दिए हैं और मैंने कई दफ़ा माननीय खन्ना जी को सुना है, उनके मुख वचनों को सुना है और उनसे काफ़ी कुछ सीखा है कि किस प्रकार से हमें ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत एक महाशक्ति के रूप में विकसित हो रहा है और ये महाशक्ति किसी लड़ाई की शक्ति नहीं है। ये महाशक्ति एकता की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, जिससे भारत आगे की ओर जा रहा है। वासुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत लेके श्री राकेश कुमार जी ने एक रचना रची थी आज से 25 वर्ष पूर्व। एक एक निर्यातक को हम कैसे निर्यात कुटुंब में जोड़ेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये 55वां एडिशन अपनी भव्यता दिखा रहा है कि कितने लोगों को इससे काम मिल रहा है और कितने लोगों को आगे भविष्य में इससे आशा है और काम मिलेगा। मैं हृदय से उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनकी जो सोच है वो आज पूर्णतः सत्यता को प्राप्त हो रही है। EPCH की पूरी टीम में ED वर्मा जी व समस्त टीम ने रात दिन एक करके इन फेयरों को साकार करने के लिए प्रयास किया है। मुझे दोबारा चेयरमैन बना के इस फेयर का जो उन्होंने मुझे गौरव प्रदान किया है, मैं उसके लिए समस्त CEO मेंबर्स का, EPCH का धन्यवाद करता हूँ। वह अपने सभी निर्यातकों से आज के दिन एक प्रार्थना करता हूँ कि एक कसम लें कि जिसके यहाँ एक बायर आएगा वो 10 पेड़ लगाएगा। एक बायर 10 पेड़, क्योंकि बायरों की संख्या बहुत है तो हजारों की संख्या में लगे हुए पेड़ हमारे देश से पॉल्यूशन की समस्या को भी हल करेंगे। आप सभी सम्मानित अतिथियों का, मीडिया कर्मियों का, मंच पर आसीन व्यक्तित्व का
हमारे सामने बैठे हमारे सीनियर्स का मैं सबका अभिवादन करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि आपने पधार कर हमारी इस फेयर को उज्ज्वलता पे पहुँचाया है और आगे भी आपका हमारा